Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. I am Dr. Numan, and today is the SGD of female genital tract. Let's have a very brief overview of the important topics of female genital tract. Firstly, the anatomy, as you know, the anatomy of female genital tract. Firstly, this is the vulva, as you know, then vagina, cervix, you know this, cervix, its anatomy, then the uterus, then the adnexa. You know the anatomy. I'm not going into the detail. Simply telling you that the epithelium of the vulva, as you know, is stratified squamous keratinized epithelium, except this vestibule, which has non-keratinized epithelium. Anyhow, secondly, the epithelium of cervix. You know, the cervix has been divided into two, ectocervix and endocervix. Ectocervix, the epithelium of ectocervix is stratified squamous. Again, stratified squamous, non-keratinized. And the epithelium of endocervix is columnar epithelium, as it is endocervix. Here I am showing you. This is the endocervix, and its epithelium is columnar. इसी तरह, this is the uterus, और इसकी lining epithelium is columnar. ठीक है, तो we are talking about this vulva, vagina, and cervix and uterus. हम इसके बारे में बात करेंगे. The fallopian tubes and fallopian tube and ovaries will be discussed in the next SGD. Now, firstly, vulva, the very important topics. The brief overview. Lichen sclerosis. It is simply the atrophy of epithelium. Lichen simplex chronicus. It is simply the hyperplasia of the epithelium. Condyloma, as you know, it is human papillomavirus infection, and it is the warts. It forms the warts on the vulva. And then the carcinoma. This is important in vulva. This is important, carcinoma. Although it is a rare tumor, लेकिन carcinoma is important topic of vulva. ठीक है, और as you know, the epithelium of vulva is squamous. इसीलिए the most common cancer of this region can be the squamous cell carcinoma. जैसे आपको पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ कि जिस region की जो epithelium होगी वो ही उसका most common cancer होगा. ठीक है, तो चूंकि squamous epithelium है तो squamous cell carcinoma is the most common tumor of this region. आगे आपने इसकी डिटेल आपने पढ़ी हुई है, मैं उसमें नहीं जा रहा. The most common site of this tumor is labia majora, most common site. आगे फिर इसकी दो फॉर्म्स होती हैं, एक कॉमन फॉर्म है, एक लेस कॉमन फॉर्म है. कॉमन फॉर्म जो है वो लाइकन स्क्लेरोसिस एसोसिएटेड है, लेस कॉमन फॉर्म वो ह्यूमन पेपिलोमावायरस एसोसिएटेड है. कमिंग टू वेजाइना, इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, लाइक जो बिनाइन टॉपिक्स हैं, लाइक वेजिनाइटिस है, पॉलिप है. इस तरह जो न्यूप्लाज्म है उसमें बिनाइन न्यूप्लाज्म पेपिलोमा है, मिलिग्रेंट न्यूप्लाज्म मोस्ट कॉमन अगेन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है. जैसे हमने पहले बताया, जैसे पहले बात की कि एपिथेलियम ऑफ दिस रीजन इज स्क्वेमस. ठीक है, तो इसीलिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ दिस रीजन ऑफ वेजाइना. ठीक है, उसके बाद दी सर्विक्स, जैसे मैंने पहले बात की, सर्विक्स इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. ये एक्टोसर्विक्स है, ये एक्सटर्नल ऑस के बाहर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज एक्टोसर्विक्स. और जो अंदर वाली साइड है, दिस इज एंडोसर्विक्स. हमने बात की कि एक्टोसर्विक्स इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम. ठीक है, ये एक्टोसर्विक्स है, ये दिस इज एक्टोसर्विक्स, दिस इज लाइंड बाय स्क्वेमस एपिथेलियम. और जो एंडोसर्विक्स है, और उसके अंदर वाली जो एंडोसर्विक्स है, दिस इज columnar epithelium. Now here it is a junction of squamo-columnar epithelium. इसे हम ऐसे जंक्शन कहते हैं, squamo-columnar junction. And this is very important क्योंकि यहाँ पर एक एपिथेलियम दूसरी में कन्वर्ट हो रही होती है, और ये पोटेंशियल साइट है एबनॉर्मेलिटीज के लिए, और स्पेशली दिस इज अ पोटेंशियल साइट फॉर
डेवलपमेंट ऑफ कार्सिनोमा, ठीक है। यहीं पे मेटाप्लेजिया, यहीं पे कार्सिनोमा वगैरह वगैरह, यहाँ ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट साइट है और ज्यादातर जो न्यूप्लाज्म है दे अराइज हियर। इसीलिए दिस स्टेमोटर्मिनल जंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन जोन भी कहते हैं, क्योंकि एक एपिथेलियम दूसरी एपिथेलियम में कन्वर्ट हो रही होती है नॉर्मली। ये आप देख रहे हैं स्क्वेमस एपिथेलियम हिस्टोलॉजी, दिस इज स्क्वेमस एपिथेलियम, अब नजर आ रही है, ये एक्टोसर्विट्स में होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, एंड दिस इज कलमनर एपिथेलियम जो एंडोसर्विट्स में होती है। नाउ अगेन द मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ सर्विट्स इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो एक्टो से अराइज होता है मोस्टली, तो दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ सर्विक्स। बाकी जो टॉपिक्स है आपको पता ही है, इसकी इन्फ्लेमेशन हो सकती है, ठीक है, सर्विसाइटिस है, पॉलिप है। न्यूप्लाज्म में मोस्ट कॉमन हमने बात कर ली कि वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, 75% केसेस में यही होता है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन। उसके बाद अंदर वाली आपको पता है कि कलमनर एपिथेलियम है, तो वहां से अडीनो कार्सिनोमा हो सकता है, इनका मिक्सचर हो सकता है, मिक्स्ड अडीनो स्क्वेमस, इस तरह न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर हो सकता है, स्मॉल सेल वगैरह वगैरह, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये आपने रखना है याद। वल्वा, वजाइना और सर्विक्स, इन तीनों का मोस्ट कॉमन ट्यूमर, मोस्ट कॉमन कैंसर जो है वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये आपने याद रखना है। नॉट कमिंग टू द फर्स्ट एसजीडी। एसजीडी ये टॉपिक क्या है जी, सॉरी, अब आप देख लें, दे सिनेरियो ये है कि 50-year-old फीमेल प्रोस्टिट्यूट है, who was a chronic smoker, referred to gynae oncology department, और उससे इश्यूज क्या थे, she had abnormal vaginal bleeding, जिसकी वजह से उसकी सर्वाइकल बायोप्सी की गई और बायोप्सी शोड इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। अब आप पूरा ये सिनेरियो देखें कि प्रोस्टिट्यूट है, इसका मतलब है कि शी विल बी हैविंग मेनी सेक्सुअल पार्टनर्स, ठीक है, स्मोकर है। अच्छा, वो जब प्रेजेंट हुई तो शी प्रेजेंटेड विद एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग, और जब उसकी बायोप्सी की गई तो दैट द रीजन शोड इन्वेजिव कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स। अब आगे जो क्वेश्चंस है वो आप देख लें। What type of cervical carcinoma is most common among patients? वो मैंने पहले बता दिया कि squamous cell carcinoma is most common among patients, ठीक है। Squamous cell carcinoma of cervix is the most common tumor of the cervix. Pathogenesis करेंगे हम अभी, risk, what are the risk factors वो भी देखेंगे, and how can you screen and prevent cervical carcinoma, screening method क्या है वो भी देखेंगे। So the very important topic is CA cervix, carcinoma of the cervix, और 75% केसेस में ये मैंने पहले बता दिया कि this is the squamous cell carcinoma, most common squamous cell carcinoma। पीक एज इसकी 45 है, होता ये ओल्ड एज में है, ठीक है, ये 40s में 50s में होता है, ओल्ड एज में होता है, और जितने भी ट्यूमर हैं सर्विक्स के उन सब के एसोसिएशन है विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसीलिए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा की भी एसोसिएशन है विद ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, इट हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रोपिज्म या एफिनिटी फॉर स्क्वेमस सेल्स, इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स जो कि ट्रांसफॉर्मेशन जोन में होते हैं, इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स जो कि बेजल एरिया में होते हैं, एपिथेलियम के जो बिल्कुल नीचे वाली जहां से ये ग्रो हो रहा होता है, ठीक है, वो उसकी बात हो रही है, इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स। सो दिस वायरस हैज ट्रोपिज्म फॉर दैट इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स। अब आपने याद रखना है कि इसकी जो प्रोग्रेशन है सर्वाइकल कैंसर की वो कैसे होती है। पहले होगा सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म विच विल लीड टू इन्वेजिव कार्सिनोमा। पहले इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म होगा, इंट्रा एपिथेलियल, ठीक है, ये हम वही बात कर रहे हैं जो हमने पहले बात की थी। मैंने आपको पहले बताया था जैसे कार्सिनोमा इन सिटू होता है, ठीक है, वो कैसे राइज होता है वो मैंने पहले आपको डिस्कस किया हुआ है आपसे, ठीक है। ये वैसे ही ये बेसिकली सिन क्या है, CIN, सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म, ये बेसिकली क्या है, कार्सिनोमा इन सिटू है, और उससे फिर इट विल कन्वर्ट इनटू इन्वेजिव कैंसर, वो हम देखेंगे अब। खैर, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ CA सर्विक्स। सबसे पहले तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। सेकेंडली
ये बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स, दीज रिस्क फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल एक्टिविटी, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है ये सारे रिस्क फैक्टर्स। एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन, दूसरा अर्ली एज एट फर्स्ट इंटरकोर्स, थर्ड मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स, नंबर 4 मेल पार्टनर विद मल्टीपल प्रीवियस सेक्सुअल पार्टनर्स। उसके बाद जो जर्नलाइज्ड हो सकते हैं, जैसे पेशेंट कैन बी इम्यूनोडेफिशिएंट, she is using she is having STDs, high parity, oral contraceptive will use, ठीक है, ये सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो ये मोस्टली these risk factors are associated with sexual activity. Now coming to the pathogenesis of CA cervix, जैसे हमने पहले बात की कि सेक्सुअल एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन, सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, इन्फेक्शन होगी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की। अब ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस करता क्या है? ये जो बेसल सेल्स होते हैं, यानी इमेच्योर स्क्वेमस सेल्स, ये उनको जाके इन्फेक्ट करता है, वहां पे ग्रो करता है, जबकि जो ऊपर वाले मेच्योर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ऊपर वाले, ठीक है, उनमें ये रेप्लिकेट करता है। यूजुअली रेप्लिकेशन काम होता है नीचे वाले सेल्स का, बेसल सेल्स का, लेकिन ये उनको इन्फेक्ट करता है और ऊपर वाले सेल्स को जो वहां जाके रेप्लिकेट करता है। अच्छा, अब जाहिर है उसमें मेच्योर सेल्स में जाके ये रेप्लिकेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेच्योर सेल्स में कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वहां पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है। क्या करता है वहां पे म्यूटेशंस कर देता है, ठीक है। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ इन्फेक्शन हुई। अब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या करेगा? कुछ म्यूटेशंस कॉज करेगा जिसकी वजह से ये ट्यूमर अराइज होगा। वो क्या म्यूटेशन होती है? मोस्टली ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो ज्यादा एग्रेसिव टाइप है, यानी 16 एंड 18, वो ये करते हैं। 6 एंड 11 जो कि लो रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, जो कि लेस एग्रेसिव टाइप्स हैं, उनमें ऐसा नहीं होता। उनमें अमूमन ये वार्ड्स तक जाता है, ये पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। इट कैन लीड टू वार्ड्स को, यानी कोंडाइलोमा, उस तक जा सकता है। लेकिन ये जो कैंसर की डेवलपमेंट है, इट इज मोस्टली एसोसिएटेड विद हाई रिस्क ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। वो कौन सी स्ट्रेन्स हैं? वो हैं 16 एंड 18। अब ये करेंगी क्या? ये मैंने भी बात की कि ये जेनेटिक म्यूटेशंस कर देंगी। क्या कर देंगी? ये ओवर एक्सप्रेस कर देंगी ऑन्कोजीन्स को। कौन से ऑन्कोजीन्स? E6 एंड 7, ठीक है। ऑन्कोजीन्स का काम क्या होता है? ट्यूमर डेवलप करना, ठीक है। तो ये क्या करेंगी? ऑन्कोजीन्स को ओवर एक्सप्रेस कर देंगी, E6 एंड E7, और जो ट्यूमर रोकने वाली जीन्स हैं उनको डिप्रेस कर देंगी, उनको सुप्रेस कर देंगी। कौन सी ट्यूमर सुप्रेस करने वाली जीन्स होती हैं? दे आर P53 एंड RB, ठीक है। इन दोनों को ये सुप्रेस कर देंगे। अच्छा, सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन हुई। ये सेक्सुअल एक्टिविटी ज़्यादा लॉन्ग काफी अरसे से हो रही होती है, ठीक है। उसकी बाद 20-30 साल के बाद ये डेवलप होता जाएगी आके। तो उससे क्या हुआ कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन हुई। हाई रिस्क जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है 16 और 18, वो क्या करेंगे? वो ऑन्कोजीन्स को ओवर एक्सप्रेस कर देंगे, जबकि ट्यूमर सुप्रेसर जीन को इनहिबिट कर देंगे। अच्छा, अब ऑन्कोजीन जब ओवर एक्सप्रेस होंगे तो वो क्या करेंगे? वो एपिथेलियम के अंदर डिस्प्लेजिया कॉज कर देंगे, ठीक है। अब डिस्प्लेजिया यानी डिस्प्लास्टिक एपिथेलियम बना देंगे। डिस्प्लेजिया विल लीड टू कार्सिनोमा इन सिटू। मैंने आपको पहले बताया, वो आप रिवाइज भी करेंगे कि पहले डिस्प्लेजिया एक थोड़े से एरिया में होता है, फिर ज्यादा एरिया में होता है, और फिर वो डिस्प्लेजिया फैलते फैलते वो पूरी एपिथेलियम को इन्वॉल्व कर लेता है, जिसको हम कार्सिनोमा इन सिटू बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम यहाँ पे हायर ग्रेड या हायर ग्रेड सिन यानी कि सर्वाइकल इंटरएपिथेलियल न्यूप्लेजिया बोलते हैं। अच्छा, एनी हाउ, अब जब सिन बन जाएगा तो देन देयर विल बी अनदर म्यूटेशनल चेंज, और वो क्या होगी? वो LKB की एक्सप्रेशन होगी। LKB, ठीक है। इसकी एक्सप्रेशन से क्या होगा? दिस सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लाज्म विल बिकम इन्वेजिव कार्सिनोमा। पहले वो सिर्फ और सिर्फ वो ट्यूमर है इनसाइड द एपिथेलियम, नाउ इट विल इन्वेड द लोअर सरफेस, ठीक है। वो बेसल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके वो नीचे आ जाएगा, इन्वेड कर देगा, एंड इट विल बिकम इन्वेजिव कैंसर, और फिर वो वहां से मेटास्टेसाइज कर जाएगा। सो दिस इज द पैथोजेनेसिस। अगर मैं इसे रिवाइज करूं तो सिंपली क्या हुआ? पहले सेक्सुअल एक्टिविटी हुई, उससे क्या हुआ? ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की इन्फेक्शन हुई। उन्होंने क्या किया? ऑन्कोप्रोटीन E6 E7 को ओवर एक्सप्रेस कर दिया, और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स
p53 एंड आरबी को इनहिबिट कर दिया, उससे क्या हुआ, इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ CIN और CIN विल कन्वर्ट इनटू इन्वेजिव कैंसर। ये है पैथोजेनेसिस। अब CIN यानी कि सर्वाइकल इंटरएपिथेलियल न्यूप्लेजिया को 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया है, 1 2 3। ठीक है, ये जो फर्स्ट है, अगर डिस्प्लेजिया बिल्कुल माइल्ड सा, ठीक है, आप देखें ये डिस्प्लेजिया सिर्फ और सिर्फ ये थोड़े से ये बेजल रीजन में डिस्प्लेजिया आपको नजर आ रहा है, ये बेजल रीजन में, ये नॉर्मल एपिथेलियम है सारी, ठीक है, ये स्क्वेमस एपिथेलियम, बेजल रीजन में डिस्प्लेजिया हुआ छोटे से यानी लेस देन हाफ, सो दिस इज नोन एज CIN1, ये फर्स्ट कैटेगरी है। अगर ज्यादा हो गया यानी कि मोर देन हाफ, लेकिन कंप्लीट नहीं है, मोर देन हाफ है, तो इसे हम मॉडरेट डिस्प्लेजिया बोल देंगे, जिसको हम CIN कैटेगरी 2 कहते हैं। ठीक है, और अगर सीवियर डिस्प्लेजिया हो गया यानी कि सारा के सारा ऊपर से लेके नीचे तक सारी एपिथेलियम इन्वॉल्व हो गई है, तो इसे हम सीवियर डिस्प्लेजिया बोल देंगे, इसी को ही कार्सिनोमा इन सिटू कहते हैं। ठीक है, तो इसे CIN3 भी बोलते हैं, सीवियर डिस्प्लेजिया या कार्सिनोमा इन सिटू, ये थर्ड ग्रेड है। तो CIN हैज 3 ग्रेड्स, 1 माइल्ड डिस्प्लेजिया, 2 मॉडरेट डिस्प्लेजिया एंड थर्ड इज सीवियर डिस्प्लेजिया यानी कार्सिनोमा इन सिटू। और इसके बाद आगे जो है वो है इन्वेजन यानी इन्वेजिव कार्सिनोमा, CIN विल देन कन्वर्ट इनटू इन्वेजिव कार्सिनोमा। ये मॉर्फोलॉजी थी CIN की, ये अगर आप फोटो देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल स्क्वेमस एपिथेलियम। ये क्या हो रहा है, ये इसके लोअर पोर्शन पे डिस्प्लेजिया है, ये डिस्प्लेजिया अब मिडल तक आ गया है और ये डिस्प्लेजिया अब ऊपर तक चला गया, ये CIN कैटेगरी 3 है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब क्या है कि ये जो CIN की ग्रेडिंग है 1 2 3, इसको प्रैक्टिकली हमने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया, इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दिया। वो कैसे, इनको कन्वर्ट कर दिया इनटू लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। ठीक है, ये सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया या इसको स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया भी बोलते हैं, CIN कह लें आप या SIN कह लें, स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। ठीक है, ये दोनों इसी की है। अच्छा, अब इनको हमने, इस सिन को हमने मजीद सिंप्लीफाई कर दिया है। वो कैसे किया है, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, प्रैक्टिकली इसे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक है कि जो माइल्ड डिस्प्लेजिया है उसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, और ये जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी है इसको कन्वर्ट कर दिया है इनटू हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। ठीक है, तो हमने सिन को डिवाइड कर दिया है इनटू 2 सिंपल कैटेगरीज जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस थिंग। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है, ये आपने याद रखना है। नाउ कमिंग टू द मॉर्फोलॉजी ऑफ इन्वेजिव कैंसर, अभी हम सिन की बात कर रहे थे, अब इन्वेजिव कैंसर की मॉर्फोलॉजी की बात कर लें। ग्रॉसली पहले बात की हुई है कि ट्यूमर 2 तरह से प्रेजेंट करेगा, या वो एक्सोफिटिक होगा या वो एंडोफिटिक यानी इनफिल्ट्रेटिव या अल्सरेटिव, ये 2 टाइप्स होती हैं। वही इसमें कि या ये बाहर जाएगा या ये अपनी वॉल के अंदर जाएगा। अब माइक्रोस्कोपिकली ये है क्या, दिस इज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा which can be keratinizing and it can be non keratinizing। लेकिन केराटिनाइजिंग, ये जो डायग्राम है ऑफ केराटिनाइजिंग मोस्ट कॉमनली यही टाइप होती है इसकी, स्टेम सेल कार्सिनोमा की, एंड इट इज इजी टू आइडेंटिफाई, इजी टू डायग्नोस। ये केराटिन पर्ल्स हैं, यू कैन इजीली अप्रिशिएट दीज केराटिन पर्ल्स, ये पड़ी हुई है बड़ी बड़ी केराटिन पर्ल्स। ठीक है, ये एक इसका फीचर होता है। सेकेंडली, इनके सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर डिजिटेशंस या इंटरसेलुलर जंक्शंस होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये केराटिन पर्ल्स है। आपके लेवल पे ये आपने देख लिया है, ठीक है, जहां पे ये पड़ा होगा, बाकी सेल्स सारे वो एबनॉर्मल हैं। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। जहां भी हो, चाहे ये वल्वा में हो, चाहे वजाइना में, चाहे सर्विक्स में, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी ही होगी। क्लिनिकली सिन तो ज़ाहिर है एसिम्प्टोमेटिक होता है, पेशेंट कैन प्रेजेंट विद ब्लीडिंग और विद पेन, लेकिन मोस्टली इट इज एसिम्प्टोमेटिक। और सिम्टम्स क्या होंगे कि वजाइनल ब्लीडिंग होगी, लिकोरिया होगा, पेनफुल कोइटस होगा, डिसयूरिया होगा, ये सारे इसके सिम्टम हो सकते हैं। अब आपने उसकी लोकेशन से याद रखना है कि क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं। एक तो ब्लीडिंग होगी, दूसरा सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसे प्रॉब्लम होगी, और तीसरा उसे यूरिनेशन के दौरान प्रॉब्लम होगी। अच्छा, दी प्रिवेंटिव मेथड
used for cervical carcinoma is pap smear. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पैप स्मीयर ही वो ट्यूमर है जिसके अगेंस्ट ये प्रिवेंशन या ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल साबित हुआ है। ये आपने याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है। दिस पैप स्मीयर इज यूज्ड एज ए स्क्रीनिंग टूल, और ज़ाहिर है ये अगर अर्ली एज पे ये स्क्रीन हो जाए और पता चल जाए कि पेशेंट इज गोइंग टू सफर फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर, तो इसे प्रिवेंट किया जा सकता है। तो इट इज बोथ स्क्रीनिंग टूल एंड प्रिवेंटिव एज वेल। अच्छा, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, कि इसमें आप देख सकते हैं दिस आर द स्केमस सेल्स। ये बड़े, मैं इस डिटेल में नहीं जा रहा, ठीक है। इनके छोटे छोटे से न्यूक्लियाई हैं, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे ये एबनॉर्मल होते जाएंगे, सेल का साइज कम होता जाएगा, जबकि न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, एनसी रेशियो बढ़ती जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पे बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया, ये मजीद ये ट्यूमर सेल आ गए, ठीक है। ये सिन है और ये आगे इन्वेजिव कार्सिनोमा। एनी हाउ, सो दिस इज द फोटो ऑफ पैप स्मीयर। ये ऐसे नजर आते हैं। ये दिस इज द पैप स्टेन व्हिच वी यूज टू डायग्नोज। नाउ कमिंग टू यूट्रस। नाउ द यूट्रस में अगेन देयर आर मल्टीपल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। ये यूट्रस है, इसकी अगर आप देखें इसकी हिस्टोलॉजी आपको याद होगी कि इसकी अभी हमने बात की थी, जो एपिथेलियम है दैट इज ग्लैंडुलर, यानी क्लम्बर एपिथेलियम है। नीचे इसकी मायोमेट्रियम है, ये पेरीमेट्रियम है, आउटर सिरोजा है। ये आपको हिस्टोलॉजी इसकी याद होगी। अगर एंडोमेट्रियम, अब एक वर्ड होता है एंडोमेट्राइटिस, दिस इज सिंपली इन्फ्लेमेशन, ठीक है। एडिनोमायोसिस क्या होता है कि अगर एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स यहाँ से एंडोमेट्रियम से इन्वेड कर जाएं इनटू द मायोमेट्रियम, ये सिंपल एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स इनके अंदर पड़े हो मायोमेट्रियम के अंदर, तो उससे एडिनोमायोसिस बोलते हैं। एंडोमेट्रियोसिस क्या है कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्टोमा का एंडोमेट्रियम यानी यूट्रस से बाहर मौजूद हो, ठीक है, यूट्रस से बाहर मौजूद हो, ये ओवरी में, फिलोपियन ट्यूब में वगैरह वगैरह, वहां पे इसे फिर हम क्या कहेंगे, इसे टर्म यूज करेंगे एंडोमेट्रियोसिस, ये टर्म यूज होगी। देन ब्लीडिंग हो सकती है, यहाँ पे एब्नॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो सकता है, यहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो सकता है एंडोमेट्रियम का, ठीक है। और इसी तरह ये नीचे जो मायोमेट्रियम है, जो कि एक्चुअली स्मूथ मसल सेल्स हैं, उनका ट्यूमर बन सकता है। और वो ट्यूमर मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है, लियोमायोमा होता है। मोस्ट कॉमनली बिनाइन ट्यूमर लियोमायोमा होता है, ठीक है। और जो जो इसका वो है दूसरा काउंटर पार्ट मेलिग्नेंट लियोमा इसका। एनी हाउ, कमिंग टू द नेक्स्ट एसजीडी। अब एसजीडी क्या है, क्वेश्चन क्या है, 45-year-old female develops a peanut sized nodule है 45-year फीमेल में, नोड्यूल इन एन ओल्ड मिडलाइन लेप्रोटमी स्कार, जो कि पेनफुल है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड। Excised nodule consists of normal looking endometrial tissue with glands and stroma, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फीमेल है ओल्ड एज में, जिसके कोई पहले कोई जहां पे ऑपरेशन हुआ था और स्कार बना था, वहां पे एक नोड्यूल अपीयर हुआ है, और वो नोड्यूल पेनफुल है और उसकी एसोसिएशन है विद मेंस्ट्रुअल साइकिल, यानी जब मेंस्ट्रुएशन में पेन होनी होती है तो उसी दौरान उसको भी पेन होती है फीमेल को, उस नोड्यूल में भी पेन होती है, ठीक है। और जब उन्होंने वो नोड्यूल को एक्सरसाइज किया तो उसमें उन्हें क्या मिला, इट हैज नॉर्मल लुकिंग एंडोमेट्रियल टिश्यू, यानी कि एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स थे और एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा था। तो व्हाट इज द डायग्नोसिस, दिस इज एंडोमेट्रियोसिस, ठीक है। हम अब आगे करेंगे डायग्नोसिस क्या एंडोमेट्रियोसिस है, उसकी पैथोजेनेसिस यानी उसके 4 थ्योरीज वो अभी देखते हैं, मोस्ट कॉमन लोकेशन कौन सी होती है वो हम देखते हैं, एंड हाउ वुड यू डायग्नोज अ पेशेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस वो देखते हैं। ये डायग्राम है, these आर द एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ये नजर आ रहे हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं। Endometriosis, by definition, it is the presence of endometrial glands and stroma in a location outside the endomyometrium, यानी एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम को छोड़ के बाकी कहीं भी ये एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स और स्ट्रोमा पड़े हों तो उसको हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। अच्छा, इसकी साइट्स मोस्ट कॉमन जो है वो ओवरी है, इसके अलावा और साइट्स हैं, पाउच ऑफ डगलस, यूटेराइन लिगामेंट्स, फैलोपियन ट्यूब,
सेप्टम, लिम्फ नोड, ये रेयर साइट्स हैं, लंग्स, हार्ट, स्केलेटल मसल, बोन एटसेट्रा, ठीक है, मल्टीपल एरियाज में हो सकती है ये। मोस्ट कॉमन साइट्स आपने देख लिया। इसकी जो थ्योरी है कि ये फैलता कैसे, यानी ये होता कैसे है, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, 4 थ्योरीज हैं इसमें। एक ये है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान रिगर्जिटेशन होती है उस मेंस्ट्रुअल ब्लड की, ठीक है, इनटू द फेलोपियन ट्यूब, यहां से रिगर्ज करके वो ओवरी में भी आ जाएगा, इस तरह से ये स्प्रेड होता है। एक ये थ्योरी है। दूसरी, लेकिन ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती कि ये जो एंडोमेट्रियोसिस है, इसमें तो चलो एक्सप्लेन हो गया कि फेलोपियन ट्यूब में और ओवरी में ये कैसे स्प्रेड हो सकती है, यहाँ से एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स कैसे जा सकते हैं, लेकिन दूर कैसे जाएंगे, ठीक है, लंग्स में कैसे जाएंगे, लिवर में कैसे जा सकते हैं, बोन में कैसे जा सकते हैं, तो ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं करती। सेकेंड थ्योरी के मेटाप्लास्टिक डिफरेंशिएशन ऑफ सिलोमिक एपिथेलियम। अब ये जो एंडोमेट्रियम है, इट आल्सो अराइज फ्रॉम, ये जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की, इट आल्सो अराइजेस फ्रॉम सिलोमिक एपिथेलियम, ठीक है। इसी तरह ये जो बाकी हैं ये भी सिलोमिक एपिथेलियम से अराइज होते हैं, लेकिन वो जो इससे नहीं अराइज होते हैं, जिनकी एपिथेलियम इन जैसी नहीं है, उनमें भी ये एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है। तो ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं करती कि वहां ये कैसे हो सकता है। अब जो बाकी जो 2 थ्योरीज हैं, एक्स्ट्रा पेल्विक डेसिमिनेशन थ्रू पेल्विक वेन्स या लिम्फेटिक डेसिमिनेशन, ठीक है, ये एक्सप्लेन करती हैं कि दूसरी साइड्स पे, दूर वाली जगह पे ये एंडोमेट्रियोसिस कैसे हो सकती है, ठीक है। यानी ये थ्योरी बताती है कि वास्कुलर मैकेनिज्म से या लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू भी एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स या स्ट्रोमा उन जगह पे पहुंच सकते हैं। ये थ्योरी उसको एक्सप्लेन करती है। अगरचे कि ये कोई फैक्ट नहीं, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अभी तक ये अंडर स्टडी है, ये मतलब थ्योरीज ही हैं, कंफर्म नहीं है, ठीक है। ये जो पुरानी थ्योरी थी वो रिगर्जिटेशन थ्योरी है, मेटाप्लास्टिक थ्योरी है। अभी जो थ्योरी चल रही है लिम्फेटिक डेसिमिनेशन एंड एक्स्ट्रा पेल्विक डेसिमिनेशन थ्रू पेल्विक वेन, यानी वास्कुलर चैनल्स के थ्रू डेसिमिनेशन। मॉर्फोलॉजी इसकी देखें, पहले ही बता दिया कि ग्रॉसली क्या है, एक नोड्यूल मिलेगा रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा, माइक्रोस्कोपिकली 3 चीजें होंगी। ये इन 3 चीजों में से 2 चीजें जरूरी हैं एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करने के लिए। 2 चीजों का होना जरूरी है, या एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स मिलेंगे, साथ में एंडोमेट्रियल स्ट्रोमा मिलेगा, या हेमोसिडरिन पिगमेंट होगा। ये अब आपने याद रखना है, ये 3 नेसेसरी चीजें हैं हिस्टोलॉजिकली एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करने के लिए। ये 3 चीजें जरूरी है, एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, एंडोमेट्रियम का स्ट्रोमा और हेमोसिडरिन पिगमेंट। ये तीनों में से कोई सी 2 चीजें मौजूद होंगी तो वी विल डायग्नोज इट एज एंडोमेट्रियोसिस। क्लिनिकल फीचर, शी विल हैविंग डिस्कम्फर्ट इन द लोअर एब्डोमेन, वो मैंने पहले कर लिया, स्वेयर डिस्मेनोरिया होगा, पेल्विक पेन होगी, वो हम पहले कर चुके। अब हम आते हैं अदर एसडीडी पे। 57-year-old ओबीस वुमन है, नोलिवेरस वुमन है, ओल्ड एज में है, ओबीस है, वजाइनल ब्लीडिंग है लास्ट 2 मंथ से, उसे 7 ईयर पहले मेनोपॉज हो चुका हुआ है। फिजिकल एग्जामिनेशन पे यूट्रस इज बल्की और एंडोमेट्रियल थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर। हिस्टेक्टमी हुई, माइक्रोस्कोपिक पिक्चर ये नीचे दी गई। अब देखें, ओल्ड एज है, ओबीस पेशेंट है, पिछले 2 महीने से उसे वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और जब फिजिकल एग्जामिनेशन किया तब भी यूट्रस बल्कि थी, अल्ट्रासाउंड पे देखा तब भी एंडोमेट्रियम थिकनेस ज्यादा है। अब उसकी हिस्टेक्टमी हुई तो माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इज दिस। नाउ दिस माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इज शोइंग एबनॉर्मल एंडोमेट्रियल, ये सारे एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं, ये नजर आ रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम है, ये ग्लैंड्स हैं, एंड दीज एंडोमेट्रियल सेल्स, ये जो कलमनर सेल्स हैं, ये ग्लैंड लाइक जो सेल्स हैं, दे आर एबनॉर्मल। इट मींस के दिस इज सम काइंड ऑफ ग्लैंडुलर कार्सिनोमा। तो ग्लैंडुलर कार्सिनोमा कौन सा होता है वो भी हम देख लेते हैं। व्हाट इज द डायग्नोसिस, मोस्ट लाइकली कॉज लीडिंग टू दिस कंडीशन, देखते हैं अभी। पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और म्यूटेशंस कैसे होंगे, ये अब हम देखते हैं। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड अब सिनेरियो क्या है, ओल्ड एज फीमेल है जो कि लीन है, पहले ओबीस थी अब लीन है, वजाइनल ब्लीडिंग के साथ आई है, मेनोपॉज वही हिस्ट्री है सेम उसकी, पेप्समियर में एटिपिकल सेल मिले, हिस्टेक्टमी हुई तो उसकी लीजन जो मिली है वो एंडोमेट्रियम में है जो कि रिवील्स एट्रोफिक चेंजेस मिल रही हैं। अब ये पेशेंट है, ओल्ड एज है, थिन है, और एंडोमेट्रियम जो इसके एसोसिएटेड एंडोमेट्रियम है, इसके ये जो ट्यूमर की साइट है, ये देख रहे हैं आप, एंडोमेट्रियम है, ये बल्कि सा ये थिकनेस मिल रही है एंडोमेट्रियम की, ठीक है, और इसके एसोसिएटेड जो एंडोमेट्रियम है वो थिन है। अच्छा, जब इसको हम देख रहे हैं, इसमें हिस्टोलॉजिकली जब देखें
तो दिस इज पेपिली फॉर्मेशन, ये पेपिला नजर आ रहे हैं, ठीक है, पेपिला नजर आ रहे हैं। तो ये दो टाइप्स हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की, ये दो टाइप्स हैं एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो अभी हम देखते हैं, ठीक है। वो डायग्नोसिस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2 एडिनोकार्सिनोमा, जेनेटिक म्यूटेशन, स्प्रेड वगैरह वगैरह। खैर, so the topic is endometrial carcinoma. This is very important topic. ओल्ड एज में होता है, पहले मैंने बताया इसकी दो टाइप्स होती हैं, एंडोमेट्रियाइड है और सीरस है। अब आपको पता है कि इसकी दो टाइप्स हैं, एंडोमेट्रियाइड सीरस। एंडोमेट्रियाइड को हम टाइप 1 बोलते हैं और सीरस को हम टाइप 2 बोलते हैं। ये दो टाइप्स हैं इसकी एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा की। जो पहला सिनेरियो था वो एंडोमेट्रियाइड का था और जो दूसरा सिनेरियो है वो सीरस कार्सिनोमा का सिनेरियो, ठीक है। ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। एंडोमेट्रियाइड की एसोसिएशन है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक्सेस होनी चाहिए। ओबीज हो रहा पेशेंट, ज़ाहिर है एस्ट्रोजन एक्सेस हो रहा, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा वगैरह वगैरह, ठीक है। और जो सीरस है उसकी एसोसिएशन है विद एट्रोफी, एंडोमेट्रियल एट्रोफी। हमने बात की थी दूसरे सिनेरियो में, आपको याद होगा, अभी हमने बात की थी। थिन पेशेंट होगा, एसोसिएटेड एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो। एनीहाउ, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? ये एंडो टाइप 1 के रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें क्या हो सकता है? ओबीज हो सकता है, पेशेंट कैन बी डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, इनफर्टाइल, और अगेन एस्ट्रोजन एक्सपोजर ज्यादा होगा। नाउ हम पैथोजेनेसिस की बात कर लें। एंडोमेट्राइड में जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं वो ज्यादातर मिसमैच रिपेयर जीन्स की होती हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस। इसके अलावा P10 की होती हैं, P53 की लास्ट स्टेज में हो सकती है लेकिन कम होती है। जबकि सीरस में मोस्टली जो म्यूटेशन है वो P53 की होती है। ये दोनों में फर्क है, ठीक है। साथ साथ हम फर्क भी देखते जा रहे हैं। एंडोमेट्रियाइड इज मोस्ट कॉमन, ज्यादातर ये ओबीज में होता है, एस्ट्रोजन एक्सेस जहां पे हो उनमें होता है। सीरस लेस कॉमन है, थिन पेशेंट में जिनमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी हो उसमें होता है। एंडोमेट्रियाइड की जेनेटिक म्यूटेशन ज्यादातर मिसमैच रिपेयर जीन्स में होती है और P10 में, सीरस में P53 में होती है म्यूटेशन, ठीक है। ये सारी चीजें, ये मैं आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज दिस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, मैं कोई डिटेल में नहीं जा रहा इसका, ठीक है। ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप ये पढ़ चुके हुए हैं, मैडम ने डेफिनेटली आपको पढ़ा दिया होगा। तो जो एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा होता है उसमें हमने कर लिया कि कौन कौन सी मिसमैच रिपेयर जीन्स, P10 और बाकी दूसरे जीन्स भी हो सकते हैं, P53 भी हो सकता है। जो सीरस कार्सिनोमा उसमें मेनली P53 की म्यूटेशन होती है। मॉर्फोलॉजिकली अगेन एंडोमेट्रियाइड की बात कर लें तो ग्रॉसली अगेन वही एक्सोफिटिक या एंडोफिटिक ट्यूमर हो रहा, दो तरह, या बाहर को जाएगा या अंदर को आएगा। हिस्टोलॉजिकली इसमें क्या होता है? हिस्टोलॉजिकली अब नाम से जा रहा है एंडोमेट्रियाइड, इसका मतलब है कि इसका जो ट्यूमर होगा उसके जो अपीयरेंस होगी वो एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जैसी होगी, ठीक है। एंडो ये नजर आ रहे हैं एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स हैं एंड दे हैव एबनॉर्मल सेल्स, ठीक है। हाइपरकेराटोटिक और ज्यादा पे स्टेनिंग वगैरह वो सारी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ठीक है। और नाउ अब इसकी डिफरेंट हिस्टोलॉजिकल टाइप्स होती है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। नाउ सीरस कार्सिनोमा, सीरस मैंने पहले बता दिया, ठीक है। इस पेपिली फॉर्मेशन होती है, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों में फर्क। टाइप 1 टाइप 2 मैंने पहले बता दिया, टाइप 1 एंडोमेट्रियाइड एडिनोकार्सिनोमा है और टाइप 2 सीरस एडिनोकार्सिनोमा है। ये इन दोनों का फर्क है। अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, तो ये इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। क्लिनिकली पेशेंट विल प्रेजेंट विद लिक्योरिया और इरेगुलर ब्लीडिंग, जैसे सब में होता है। अच्छा, now the last topic is leiomyoma, which is the benign tumor of myometrium, स्मूथ मसल का ट्यूमर है। इसको फाइब्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज वेरी फर्म, इसलिए इसको फाइब्राइड बोलते हैं। इसकी एसोसिएशन भी इस्ट्रोजन के साथ है। इस्ट्रोजन एक्सेस जिन पेशेंट्स में होता है, जिन फीमेल में होता है, उनमें ये मोस्टली डेवलप होता है। ग्रॉसली क्या होता है? इट इज शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड, ये आपको नजर आ रहा है, शार्पली सर्कमस्क्राइब्ड है। अगर इसे काटा जाए तो वर्ल्ड अपीयरेंस होती है, इसके अंदर स्मूथ मसल सेल्स जैसे जिसे वर्लिंग हुई होती है वैसे नजर आते हैं। मॉर्फोलॉजिकली क्या है? मॉर्फोलॉजिकली स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, ठीक है। ये जैसे नॉर्मल मायोमेट्रियम के स्मूथ मसल सेल्स होते हैं वैसे ही ये स्मूथ मसल सेल्स हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। बस ये है कि इनकी वर्लिंग हुई होती है, ये इस तरह की राउंड राउंड इसकी अपीयरेंस होती है। क्लिनिकली पेशेंट कैन प्रेजेंट विद मीटोरेजिया, ठीक है, और एबनॉर्मल सेंसेशन इन द पेल्विक रीजन, ठीक है, यानी इरेगुलर ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर सकता है। और वो इरेगुलर ब्लीडिंग डिफरेंट पैटर्न में आ सकती है, कभी हुई कभी नहीं हुई, ठीक है, इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं।
नाउ दिस इज योर असाइनमेंट। ये हमने क्या टॉपिक अभी तक हमने जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में डिस्कस किया है, हमने डिस्कस किया है वल्वा को एक जस्ट ओवरव्यू, एक शॉर्ट ओवरव्यू, ब्रीफ ओवरव्यू वल्वा का, वजाइना का। इनमें इंपॉर्टेंट क्या था कि इंपॉर्टेंट क्या था, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये याद रखना है। सर्विक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, वो आपने याद रखना है, बाकी चीजें हमने डिस्कस की। इसी तरह जो यूट्रस है उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस हमने डिटेल में देखा, और उसका ट्यूमर एंडोमेट्रियाइड कार्सिनोमा एंड सीरस कार्सिनोमा, ये हमने डिटेल में देखा। ये आपकी असाइनमेंट है, इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें, यही आपसे पूछी जाएगी। मतलब ये आपकी असाइनमेंट है, ये हम चेक करेंगे, ये आप देख लें अच्छी तरह से। देखिए ये जो सिनेरियो है ये मैं सब कुछ डिस्कस कर चुका हूं, इसमें कोई नई चीज नहीं। थैंक यू वेरी मच।